آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بریت کی درخواستیں مسترد۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں پیر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ جج شاہ رخ ارجمن عدالت نے 8 نومبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں توشہ خانہ 2 ریفرنس میں پیر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ جج شاہ رخ ارجمن کی جانب سے کہا گیا عدالت نے 8 نومبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ اور آئینی بینچ نے قاضی فائزہ کے خلاف دائر نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، آپ کیس دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں؟ وکیل نے کہا میرے پاس ریکارڈ نہیں، بلوچستان سے منگوایا جا سکتا ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کیسز میں پرسنل نہ ہوا کریں، چھوڑ دیں قاضی صاحب کی جان۔ مقدمات میں ذاتیات پر نہیں آتے، یہ مقدمہ قانونی کام اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے۔ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئینی بینچ نے پی ڈی ایم حکومت میں قانون سازی کو غیر آئینی قرار دینے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ بینچ نے عارف الوی کے بطور صدر مملکت تقرری کے خلاف درخواست پر بینچ نے درخواست گزار کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا، جبکہ غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ کے خلاف درخواست 20,000 جرمانے کے ساتھ خارج کر دیا گیا۔ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر نظرثانی کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس جمال نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، اب تو آپ نے آئین میں بھی ترمیم کر لی۔ آئینی بینچ نے 18 مقدمات کی سماعت مکمل کی، 15 کیسز خارج جبکہ 3 پر سماعت ملتوی کی گئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ قاضی فائزہ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل ریاض حنیف راہی نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی شخص براہ راست ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات نہیں ہو سکتا، پہلے بطور جج تعیناتی ہوتی ہے، پھر چیف جسٹس بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تعیناتیوں کی سمری بھی نہیں بھیجی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی میں دوبارہ اصل کیس نہیں کھول سکتے، عدالتی فیصلوں کے خلاف یہ کوئی اپلیٹ بینچ نہیں، غیر سنجیدہ درخواست پر کیوں نہ آپ کا کیس کاروائی کے لیے بار کونسل کو بھیجیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ مقدمات میں ذاتیات پر نہیں آتے، قاضی فائزہ کی جان آپ چھوڑ دیں، یہ مقدمہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے۔ آئینی بینچ نے قاضی فائزہ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی شیڈول میں ترمیم، غیر ملکی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے خلاف درخواستیں بھی خارج کر دیں۔ غیر ملکی خواتین سے پاکستانیوں کی شادی پر پابندی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی۔ آئینی بینچ نے بے بنیاد مقدمے بازی پر درخواست گزاروں کو مجموعی طور پر 60,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ آئینی بینچ نے عارف الوی کے بطور صدر مملکت تقرری کے خلاف دائر درخواست پر درخواست گزار کو دوبارہ سماعت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ماحولیات سے متعلق تمام معاملات کو دیکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ملک میں ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی صرف اسلام آباد نہیں، پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ آئینی بینچ نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات پر تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا سماعت میں 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ صوبوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو ہی کچھ نتیجہ نکلے گا۔ لاہور شہر ایک سائیڈ سے واہگہ بارڈر، دوسری جانب سے شیخوپورہ تک پھیل گیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ زرعی زمینوں پر سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹس آ جائیں تو مقدمہ نمٹا دیں گے۔ کراچی میں گڈاب ٹاؤن اور ابراہیم حیدری ٹاؤن کے درمیان حدود کا تنازع، گڈاب ٹاؤن نے لوکل گورنمنٹ کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین لوکل گورنمنٹ ٹاؤن وزیر بلدیات نے 4 نومبر کو حدود کا مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ دیا۔ فیصلے کے بعد گڈاب ٹاؤن نے ابراہیم حیدری ٹاؤن کی جانب سے جانوروں کے ٹیکس کی وصولی پر ایک بار پھر اعتراض کر دیا۔ گڈاب ٹاؤن نے کراچی آنے والے جانوروں اور ہیلتھ کیئر سرٹیفکیٹ کی مدعی میں ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ گڈاب کے بعد ابراہیم حیدری ٹاؤن نے بھی قومی شاہراہ سپر ہائی وے پر چنگچیاں قائم کر دی ہیں، جس کے بعد دونوں فریقین آمنے سامنے ہیں۔ کراچی یوسی 13 صدر ٹاؤن گزری میں مرتضی وہاب کی میڈیا ٹاک کے موقع پر شدید بدنظمی، پی ٹی آئی کارکنان کی شدید نعرے بازی، جواب میں پیپلز پارٹی کے کارکنان نے بھی نعرے بازی کی ہے۔ کراچی میں مختلف اس وقت یونین کونسلز کے انتخابات ہو رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے 10 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں۔ میر کراچی مرتضی وہاب ایک یونین کونسل پہنچے، یونین کونسل نمبر 13 پر پہنچے، جہاں پر تھوڑا بدنظمی دیکھنے میں آئی۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے نعرے لگائے گئے، جواب میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بھی نعرے بازی کی۔
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई सेंटर शिबली फराज की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने 5,000 रुपए के मचलकों के एवज शिबली फराज की जमानत कन्फर्म कर दी। अहम खबर है, अदालत ने 5,000 रुपए मचलकों के एवज शिबली फराज की जमानत तो मंजूर कर ली है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शिबली फराज की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने 5,000 रुपए मचलकों के एवज शिबली फराज की जमानत मंजूर कर ली है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शिबली फराज की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर यह समाअत हुई है और इस समाअत में अदालत ने 5,000 रुपए मचलकों के एवज शिबली फराज की जमानत मंजूर कर ली है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों लायक एहतराम हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन काजी फायसीसा की गाड़ी पर हमले के मामले पर बरतानवी इंतजामिया से राबते में हैं। मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC से राब्ते में है। उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद तकर्रियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक में तकर्रियों पर किसी किस्म का तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान आने वाली अमरीकी इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एहतजाज और जलसे के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्त होगी। पुरअमन एहतजाज का हक है। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन हमारा रास्ता रोका जाता है। विफाक हम पर तशद्दुद और रबर बुलेट का इस्तेमाल करता है और खंदकें खोदी जाती हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो हम भी तरबियत याफ्ता हो चुके हैं। अदालत में जो चीज़ चल रही है उस पर बात नहीं करता। एक पुरअमन हमारा एक, अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ये ज़्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदकें खोदते हैं। और ये जो एक तरीका है गलत है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब आइन में हमें एक हक दिया गया है तो उसके ऊपर जो है इस तरह की रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। पंजाब के मंसूबों को कॉपी करने के ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन अमली कारकर्दगी सिफर है। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि जो पैसा सूबे की अवाम के फलाह व बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से इन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। पिछले 8 माह से KPK की अवाम के लिए एक भी फलाही मनसूबा शुरू नहीं हो सका। मरीम नवाज ने पंजाब में 8 माह में 84 नए अवामी फलाह के मनसूबे शुरू किए हैं। अली अमीन को हुकूमती उमूर चलाने के लिए मरीम नवाज के विजन से सबक सीखना चाहिए। अडयाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि खान साहब जो हुक्म देंगे हम मानेंगे और ये और बात है कि इनसे मुलाकात नहीं हुई। अब सब MNAs एहतजाज में शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कहा गया है। Khan Sahib is Khan Sahib. He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. कि बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है। आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे, फिर आज में सारे लोग शरीक हुए। देखो ना, खान साहब का ऑर्डर जो है। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 10 साल पहले मैंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस किया था। अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो PTI की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। 24 नवंबर की कॉल मिस कॉल साबित होगी। वक्त पर अगर इंतशार को पकड़ा जाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज PTI के जलसों में अमेरिका का झंडा लहराया जाता है। ये कैसा अमेरिका की गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं। हम मुल्क को अमेरिका की गुलामी में नहीं जाने देंगे। मौजूदा PTI रहनुमा सब एलियंस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। JUI ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की मियां नवाज शरीफ से अभी तक मुलाकात शेड्यूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जमात के तंजीमी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं, जबकि कल उनकी पाकिस्तान वापसी भी मुतवक्के है। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से अभी तक मुलाकात शेड्यूल नहीं है। आपको बताएं, नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का
कोई इम्कान नहीं है। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से अभी तक कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं हुई है। याद रहे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी बरतानिया में मौजूद है, जबकि मौलाना फजल रहमान भी बरतानिया के दौरे पर है। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से अभी तक ऐसी कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात का कोई इम्कान सामने नहीं आया है। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से अभी तक मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे, इससे पहले इतलात आ रही थी कि मुलाकात हो सकती है, ताहम इस हवाले से बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं और इसी बारे में तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लंदन तबरेज़ ओरा से। तबरेज़, कहिएगा क्या बताया जा रहा है कि मुलाकात नहीं होगी? जी बिल्कुल, JUI के ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल नहीं है। और आपको बताता चलूं कि जब मौलाना फजल रहमान यहाँ पर पहुंचे तो ये खबरें आ रही थी कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी और आईनी तरमीमें जो हो रही हैं उस हवाले से बातचीत होगी, लेकिन अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आया, क्योंकि JUI के जो ज़राए हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि अभी तक मुलाकात के कोई इम्कानात नहीं है। मौलाना यहाँ पर तंजीमी दौरे पर आए थे और साथियों से उनकी मुलाकातें रही थी। मौलाना कल मैनचेस्टर से लंदन पहुंचे तो यहाँ पर लोकल मस्जिद में उन्होंने साथियों के साथ दीगर जो लोग हैं उनके साथ बातचीत की, खिताब किया। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब सलाह में मौजूद हैं और उन्होंने आज पाकिस्तान वापस जाना था, लेकिन किसी वजह से वो आज पाकिस्तान नहीं जा सके और ये बताया जा रहा है कि उनकी वापसी कल होगी। और अभी तक मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि मौलाना फजल रहमान की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। जी, मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं है। हमारे ब्यूरो चीफ लंदन से तबरेज़ ओरा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि काजी फाइज़ा और ख्वाजा आसिफ के साथ बदसलूकी काबिल मजम्मत है, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। ये कौन सी सियासत हो रही है? लीडर वो होता है जो अपने कारकुन को तालीम, कलम और तहजीब सिखाए, लेकिन PTI को गालम गलोच पर लगा दिया। लंगर खाने खोलने के अलावा इस शख्स ने कुछ नहीं किया। PTI की एहतजाजी कॉल किसके लिए है? अवाम ने एहतजाजी कॉल को सीरियस लेना छोड़ दिया। मुल्क के सबसे बड़े शहर में कितने लोग बानी की माजी की कॉल पर निकले? तहरीक इंसाफ मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से बदतमीज़ी की गई और फिर ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये बताएं कि ये कौन सी सियासत, कौन सी पॉलिटिक्स है। और मैंने उनको कहा कि चलो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, ये यहाँ क्यों नहीं होती, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? खुदा न खासा मैं कहता हूँ अल्लाह करे ना हो किसी के साथ भी, लेकिन चूँकि अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में होना शुरू हुई तो इसके नतीजे ख़तरनाक और हौलनाक हो सकते हैं। ये जो आप फिर मुल्क को यरगबाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे, और आप लोगों को एक दफ़ा नहीं, और आपने एक बात नोट की होगी, अब लोगों ने इमरान खान की कॉल को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने कितने बयानात इमरान खान साहब के देखे जिसमें उन्होंने कहा कि लोग निकलें बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे ये नहीं पता ट्रंप के आने से सियासी तब्दीली हो सकती है या नहीं। जिस मुल्क में दुकानदार, किसान और आवाम खुश ना हो, IMF आई हुई है, इससे मुज़ाकरात भी खुफिया हो रहे हैं। खजाने की हालत नहायत महदूश है। नवाज शरीफ जहां जाते हैं लोग इनको नाज़ेब अल्फाज से याद रखते हैं। अब जो चीफ जस्टिस इनके वज़रा के साथ हुआ, बगैर सिक्योरिटी के घूम कर दिखाएं, पाकिस्तान की ज़मीन इनके लिए तंग हो चुकी है। देखें, ये तो नहीं मुझे पता, मुझे तो सिर्फ कि उसके आने से तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन जिस मुल्क में ना दुकानदार खुश हो, ना कोई किसान खुश हो, ना आवाम खुश हो, और अब IMF आई हुई है, IMF से मुज़ाकरात खुफिया रखे जा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ खुफिया होती है, ये खुफिया खेलते हैं। खजाने की हालत नहायत मखदूश है। और एक जुमला जो नवाज शरीफ अमूमन बोला करते थे कि पले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला, तो ये इन पे खुद लागू होती है। जहाँ जाते हैं इनको गालियाँ पड़ रही हैं, इनको लोग नाज़ेबा अल्फाज से याद करते हैं। और अब जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ जो हुआ, ये बगैर सिक्योरिटी के फिर के दिखाएं, पाकिस्तान की ज़मीन इनके लिए तंग हो गई है।
PTI की इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज की तैयारियां ज़राए के मुताबिक पंजाब से मुंतखब अरकान कौमी और पंजाब असम्बली और टिकट होल्डर्स को कल पेशावर बुला लिया गया है। जुम्मे के बाद इजलास वज़ीर आला हाउस में होगा। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर, मजीद कहिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को कॉल दे रखी है और इस सिलसिले में पंजाब बिलखुसूस टारगेट है कि पंजाब से लोगों को कैसे निकालना है, क्या तैयारियां हैं, क्या हिकमत अमली है। अगर रास्ते बंद होते हैं या हुकूमत रुकावटें खड़ी करती है तो इस सिलसिले में पंजाब ही नंबर 1 प्रायोरिटी है, जो नजर आ रहा है। और इस सिलसिले में आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अरकान कौमी असम्बली है पंजाब से और सूबाई असम्बली जो पंजाब की है, जो उसके अरकान हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं, उन सबको पार्टी क़यादत की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि कल आप पेशावर पहुंचेंगे और जुमे के बाद वजीर आला हाउस के अंदर इजलास होगा। जो अरकान सूबाई असम्बली है उनको अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर की जानिब से कहा गया है कि आप अपनी कल के इजलास में हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। फिर ये भी खबरें थी कि इजलास को चेयर कौन करेगा। बुशा बीबी का नाम सर्कुलेट कर रहा था, तो अली अमीन गंडापुर तो जाहिर है कि वो उसको करेंगे ही करेंगे। तो जब हमने इस चीज को मुख्तलिफ जराए से PTI से चेक करने की कोशिश की तो PTI की जानिब से कहा गया है कि किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ उनको यही हिदायत जारी की गई है कि आला क़यादत के साथ कल इजलास है जहां पे अरकाने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को टास्क दिए जाएंगे, प्लान तरतीब दिया जाएगा। तो इसलिए जो है वो आप कल हर सूरत पहुंचे। अब मुख्तलिफ दावा जरूर बुशा बीबी का किया जा रहा है कि वो अहम पैगाम पहुंचाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान का, मुख्तलिफ जराए का ये बताना था कि बुशा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो पार्टी के जो उमूर है उसमें मुदाखलत नहीं करती, इसलिए कल का जो इजलास है वो वजीर आला ही चेयर करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल इस हवाले से बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेहत से मुतालिक अफवाहों पर वजाहत दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर नहीं, मेरी सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाई गई। मुझे पैराथायराइड का तभी मसला है और मेरा सारा इलाज पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन पैराथायराइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक स्विट्जरलैंड और अमेरिका में ही हो सकता है। ऐसी तरबियत ही नहीं कि विक्टिम बनकर लोगों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश करूं। मुझे पैराथायराइड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायराइड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। मैं अपनी बीमारी की बारे में बात करूं क्योंकि ये विक्टिम प्ले करना और ये रोना ये मैंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सिटी कोर्ट कराची ने सारिम बढ़नी की अहलिया आलिया सारिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमा को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिमा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। आलिया सारम बर्नी ने अदालत में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिटी कोर्ट में कायम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतल्लिक केस में सारिम बढ़नी की अहलिया मुलजिमा आलिया सारिम बढ़नी की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। इनकी जानिब से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी और ये मौका पर तैयार किया गया था कि इनको जो है वो गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर जो है वो इन्हें वो हिफाजती जमानत जो है वो दी जाए। अदालत ने मुलजिमा की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि इससे कबल FIA की जानिब से हतमी चालान जमा करवाया गया था मुकदमे का, जिसमें आलिया सारिम बढ़नी को भी मुलजिमा करार दिया गया था और साथ साथ सारिम बढ़नी को भी मुलजिम करार दिया गया था, जिस पर अदम गिरफ्तारी पर जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिमा आलिया सारिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जबकि प्रोसिक्यूशन का कहना था कि FIA ने मुलजिमा को अपने शोहर के हमरा शरीक मुलजिमा करार दिया है। आलिया सारिम बढ़नी ने अदालत में इसके बाद जो है वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमा करवाई, जो कि अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई है। इस केस में सारिम बढ़नी पहले से ही गिरफ्तार है और इस वक्त वो जेल में है, जबकि उनकी भी दरख्वास्त जमानत 2 मरतबा जो है वो मुस्तरद की जा चुकी है, जबकि इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का जो मुकदमा है वो FIA में दर्ज है।